Assalamualaikum guys, this is Zainab Zahra and I hope you all are doing wonderful this afternoon and welcome to NCSE's Breast Cancer Awareness podcast session. Let's officially start this session with a brief introduction about breast cancer and its statistics. Breast cancer is the most commonly occurring cancer in women and the most common cancer overall. It is estimated that each year more than 83,000 new cases of breast cancer and 40,000 deaths are reported in Pakistan. The pink ribbon is a symbol of breast cancer awareness, and October is internationally celebrated as Cancer Awareness Month, hence also referred to as Pinktober. At NCSE, NUST Community Services Club, we celebrate this month to raise awareness within our own community, to debunk myths, invite guest speakers, and share tips to prevent breast cancer. Today, we are joined by our esteemed guest, Ms. Shazia Abbas, who has fought breast cancer and emerged as a strong advocate for breast cancer awareness. It's delightful to have you on board, ma'am, and I'm truly honored to host this podcast session for a woman of extreme brilliance and resilience such as yourself. Our aim with this podcast is to understand more about breast cancers by learning about our struggle with this disease. We are going to ask you about 10 questions and you are free to skip any one of them if you want. And I'm sure it is going to be an enlightening experience for all of us, including me. And we would really like to have your pearls of wisdom with us. So let's start this session with the first question. Ma'am, if you would be so kind to introduce a little bit about yourself and who is Ms. Shazia Abbas? Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Zainab, for inviting me here. No problem. My name is Shazia Abbas. I'm a working lady. I work in Pakistan Air Force Finishing School. Mother of two. My daughter, she's married, and son, he's studying. I'm a cancer survivor, and alhamdulillah, I'm on follow-up. But still, fighting cancer is not just one-time story. It's a journey. So I'm still on the treatment phases on. Okay, so what was your initial reaction when you found out that you were diagnosed with breast cancer? Okay, it was just a normal day of my life, like everybody else. Happy family. I was working. My job was going great. My family was happy. Everything was fine, like a normal. I had a class in the morning. In the evening, while taking bath, I felt a lump in my right breast. I didn't feel bad about it. I thought it was just a normal, lump. I called my husband. He was in the office, so he advised me to go straight to the diagnostic center without wasting a minute. So I went there, but the news wasn't good. The doctors did a mammogram and later on ultrasound, and then I was told that there's something fishy. So I had to go for biopsy. So they called my husband. I called my husband. My husband, went straight to the diagnostic center, and then the treatment started. So when the biopsy was done, we went to the hospital. The doctor did a biopsy, and after 10 days, the biopsy result came. So it was positive, and it wasn't a good news. So we all were shocked, and that moment I saw, I saw angel of death standing in front of me, and he's saying, "Let's go." So that was the first reaction. Okay, so ma'am, the people around you, your friends, your family, your children, how did they react? What was their initial response to this news? Everybody was shocked. थोड़ा सा टाइम लगा हम सबको एडजस्ट होने में, इस चीज को एब्जॉर्ब करने में, बट आपके पास क्या ऑप्शन है. और फिर उसके बाद अपने आप को संभाला. So I had actually two options. One was just to leave my job, quit meeting people, lock myself in a room, and to avoid infections, because the treatment, the chemotherapy advised by the doctor, it is a chemotherapy is the toughest part. So that
was one option, and the other was just to continue with the job and continue with my life. So I opted the second option. So फिर I had first surgery, then 8 cycles of chemotherapy, then another major surgery, and then 1 month radiation. So actually 2021 मेरा पूरा साल, the whole year was dedicated to the treatment. और फिर उसके बाद भी अपने इश्यूज होते हैं, फॉलो वो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ जी. Ma'am, were you subject to any typical misconceptions and stereotypes of people around you, like colleagues होते हैं और their family members होते हैं, सब लोग होते हैं, so their people are extremely judgmental initially. So did you face any type of things and how did you deal with them? अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक तो ना एक जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, एक उससे आप एक तो मालूमात आपने, मुझे जब ये हुआ तो मैंने सबसे पहले लाइक एवरीबडी डज दैट, मैंने गूगल खोला और उसमें एक खौफनाक जो सिचुएशन थी, और जब आपको एक चीज डिजीज हो जाती है तो वर्स्ट पिक्चर्स आपके सामने आती हैं और फिर वो आपको लगता है कि बस ये तो जो है ना इस टनल, एंड ऑफ द टनल जो है ना वो अंधेरा है, जबकि ऐसा नहीं है. ये आपने सही कहा कि लोगों का जो हमारे एक वो है कि छुपाओ, बट मैंने नहीं छुपाया, बिकॉज मैं समझती हूँ कि छुपाना नहीं चाहिए, लोगों को बताना चाहिए फॉर अवेयरनेस. हम छुपाते हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं है. कोई भी बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट होती है, हमने उसमें से निकलना है. अब हम उसमें से कैसे निकलते हैं, ये हमारा काम है, और हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है दैट कम्स फ्रॉम द होली बुक. तो बस ये किया, और मुझे लगता है कि मैं टोटल डिफरेंट पर्सन आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर ये जितना भी मेरे साथ गुजरा है, तो नाउ मैं टोटल डिफरेंट पर्सन. अब मौत से डर नहीं लगता. बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगती थी. पहले मैं गाड़ियां देखती थी लोगों की, पहले मैं मोबाइल्स देखती थी, पहले मैं बहुत सारी चीजें देखती थी. अब ये चीजें मुझे मैटर ही नहीं करती हैं. तो अब मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती हूँ. मुझे जो बुलाता है मैं जरूर पूरी कोशिश करती हूँ कि जाऊँ और अवेयरनेस दूँ लोगों को, इस चीज से बाहर आ जाए कि ये कोई बुरी चीज है. छुपाना है, छुपाना नहीं है. हमें अपना इलाज कराना है. लाइफ इज ब्यूटीफुल. हमने अपना ख्याल रखना है, और इट्स अ गिफ्ट, तो हमने इसका ख्याल रखना है. मैम, एक स्टिग्मा और एक टैबू बस वैसे ही इसके साथ अटैच्ड है, which is why we are holding this Pinktober in from NCSE and this session to raise awareness, ताकि लोगों को पता चले कि this is not something that we need to hide from, this is something that we need to embrace and look after. So that's the basic point of calling you here as well, and we are so grateful. So the next question is, when you said you went undergone 2 different surgeries, right? So what were your feelings and how did you feel when you were about to go for surgery and when you got to know कि major surgery perform होनी है? अच्छा, देखिए, ये जो जितनी भी जिंदगी में मुश्किलात आती है ना, ये आपके विल पावर में, और ये एक्चुअली आपके ब्रेन में है सब कुछ. ठीक है, आप किसी भी चीज से निकल सकते हैं और किसी भी चीज से मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल से. इट्स नॉट जस्ट कि हम कैंसर की बात करें. जिंदगी में जो भी परेशानियां आती हैं, अल्लाह ताला का एक टेस्ट होता है. और हम जो देखते हैं, हमारे रिलीजन में भी है, जितने पैगंबर गुजरे हैं, किसी की जिंदगी आसान नहीं थी, और वो एक टेस्ट थी, और उसमें से लोग निकले हैं. हमें उनको देखना है. हमें अपने सेलिब्रिटीज को नहीं देखना है, हमने उनको देखना है, उनसे सीखना है. और हमें वही वाली बात है कि स्ट्रेंथ आपको वहां से मिलती है. तो वहीं से मुझे स्ट्रेंथ मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ. अभी भी मैं फाइट कर रही हूँ. लाइफ मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन जब when I go visit to the hospital, I have to visit 4 hospitals. Sometimes, I can't name the hospital. Can I name the hospital? It's okay. Okay. So I went to Shaukat Khana. My 2 surgeries, they were done there, Shaukat Khana, Lahore. अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उन्होंने बड़ा मेरा ख्याल रखा. एक और हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, बड़ा हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल. उधर मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. मेरी कीमोथेरेपी और मेरी रेडिएशन उधर हुई है. उसके अलावा यूनिट 2 है, उसके अलावा CMH है. तमाम हॉस्पिटल मैं जाती हूँ, और जब मैं वापस आती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ. इसलिए क्योंकि मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, वो भी कीमोथेरेपी करा रहे हैं. जिनकी टांगे नहीं है, वो भी करा रहे हैं. जिनके गुर्दे फेल हो गए, वो भी करा रहे हैं. मैं उन सबसे बेहतर हूँ. तो हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए, और जब तक आपके हाथ मुंह सलामत है, आपकी आंखें सलामत है, और आप अपने इंडिपेंडेंट है, अपने काम सारे कर सकते हैं. तो ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड ने, मेरा फैमिली ने बहुत ख्याल रखा. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी मदर,
my mother, she was constantly with me, you know, saying दुआएं और prayers और ये सारी तस्वीर, तो वो मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, तो ये एक it's a combined effort, it's not just one man's effort. तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली है, इन्होंने मेरा सबने बहुत ख्याल रखा और फ्रेंड्स ने बहुत ख्याल रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ अब। जी। Ma'am, obviously it was a tough time and it was something that you had to go through, which is very hard for, especially when you're a working lady, when you were in the job. So were there any instances where you felt grateful for something and where you saw that and that was your light at the end of the tunnel and you were like hopeful that yes, I can make past this and I can go through this? What was that moment? अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपकी जो फैमिली ये जो आपका सपोर्ट सिस्टम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं शायद किसी फॉरेन कंट्री में होती जहाँ मेरी फैमिली मेरे पास नहीं थी, मतलब ग्रैंड फैमिली की, इमीडिएट फैमिली तो होती है, ग्रैंड फैमिली की बात करें तो वो शायद मुझे रिकवर करने में थोड़ा वक्त लग जाता। अभी ये था कि मेरी इवन आप अगर डिस्टेंट फैमिली को भी देखें तो उनकी भी सपोर्ट थी, जो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार जो कभी कभी आपसे मिलते हैं वो भी मेरा ख्याल रखने लगे थे। और ऊपर से मेरी आपको बताऊं, मेरी जो वर्क प्लेस है पाकिस्तान एयरफोर्स फिनिशिंग स्कूल, उन्होंने मेरा ऐसा पाकिस्तान एयरफोर्स, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू देम कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉइज का, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है, आज तक रख रही है। तो उन्होंने मेरा, तो मुझे ना सिर्फ फैमिली, इमीडिएट फैमिली, डिस्टेंट फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क प्लेस, हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिली। तो वो मुझे लाइट, और फिर जब मेरा इलाज चल रहा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा जब सबकी तरफ से मुझे एक वो इतना अच्छा सपोर्ट मिली थी, तो मुझे यही लगता था कि मैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला की जात है, जब आप उस पर बिलीव करते हैं तो जो है ना वो आपको फेथ की बात है, तो मुझे टनल के एंड में लाइट नजर आती थी। जी बिल्कुल। The next question I have for you is that you're a mother of two, you mentioned, mashallah. So did you ever fear, like, for your children and as to how will they deal with the mother who is going through all of this process? And obviously it was like so long, aapka pura saal lag gaya, so like what was their reaction and how did you deal with them having this information and everything? Everybody was shocked. My children, they were depressed. My husband, everyone, my mother, my sisters, everybody was depressed. लेकिन क्या हुआ, वो कुछ थोड़े दिनों का फेज था। जब उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनको देखा, तो फिर उसके बाद हम लोगों को जब एक सपोर्ट सिस्टम की बात है ना, तो उसके बाद एक दूसरे की इतनी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट रही कि वो भी उससे निकले और हम भी निकले। और हुआ ये कि हमने मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शंस थे ना, एक तो ये कि अपने आप को कमरे में लॉक कर ले, और दूसरा ये था जस्ट मूव ऑन। तो जो वो मूव ऑन वाला एक हमारा डिसीजन था, उसमें वो सबका डिसीजन था। आपको पता है मेरे बाल जब गिरे, आफ्टर लाइक 10-11 days आफ्टर माय फर्स्ट कीमोथेरेपी, my hair they started falling off, और मुझे कभी आपको पता है पिलो पे होते, कभी बेडशीट, नहाते हुए, वो शावर लेते हुए, जगह जगह कपड़ों पे वो बाल पूरे मेरे गुच्छे से उतर रहे थे, डेड हो गए थे। फाइनली वी डिसाइडेड टू गेट, और वो ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है, तो देन वी डिसाइडेड एज अ होल फैमिली, वी टुक डिसीजन दैट जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट आई डोंट कॉल देम हेयर, वो एक गुच्छा सा मेरे सर पे जो थोड़े बहुत रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि इसको शेव ऑफ कर दो। मेरी मदर और मेरी बेटी, इन्होंने मिलकर मेरा हेड शेव किया, और माय सन वो गया जाके अपना हेड शेव करके आया, एंड ही सेड कि अम्मा यू वोंट बी द ओनली बॉल्ड इन दिस हाउस। ठीक है, तो इस तरह की मुझे जो एक सपोर्ट मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा मेरे बच्चे बड़े हो गए। पहले मुझे लगता था बच्चे बहुत छोटे हैं, ये बस पैम्पर्ड हैं और ये, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और बड़े भी हो गए और समझदार भी, माशाल्लाह बहुत समझदार है। उन्होंने मेरा बहुत सबने सपोर्ट किया, और स्पेशली माय हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह जी। Alhamdulillah, ma'am. And you said you opted for the second option to continue your work and to continue your life as it was pehle se. So can you tell us a little bit about your business, your event planning business and your candle making business, and just elaborate a little? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ज़ैनब, ऐसा था कि मैं जॉब, मतलब मैंने मुझे भी थोड़ा सा आदत है बिजी रहने की शुरू से, तो मुझे जब इवन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, आप सोचिए कि मैंने छुट्टी ही करती थी। मैं अगर कभी तबीयत खराब हो तो मैं उस दिन छुट्टी करती थी, वरना मैं कोशिश होती मैं छुट्टी ना करूं, बिकॉज ही इज जस्ट टू
कीप योर सेल्फ बिजी। अगर हम फारिग होंगे ना, घर में बैठ जाएंगे, फिर हम सोचेंगे इधर दर्द हो रहा है, उधर मुझे नौजिया हो रहा है, मैं ये सोचती ही नहीं थी। तो मैं आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ बिजी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। और उसमें ये हुआ कि मेरा ज़ाहिर सबकी सपोर्ट भी थी। तो मैंने अपने आप को बिजी रखा। अच्छा, जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ और मुझे लगा मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे, क्योंकि इवेंट प्लानिंग का बहुत शौक है, घर में भी करती थी, वैसे भी मुझे शौक है, तो मैंने एक कोर्स किया। एक प्रोफेशनल है, प्रॉपर 3 मंथ्स का वो कोर्स किया वहां से। और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। अच्छा, वो मेरे लिए ज्यादा हेक्टिक हो गया, बिकॉज सुबह मेरी जॉब थी और दोपहर को वो, तो फिर थोड़ा पाँव में स्वेलिंग और इस तरह। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने सबने एडवाइस किया कि देखो बिजी रखो, बट इतना नहीं कि तुम्हारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो। फिर मैंने सोचा, बिकॉज आई एम इनटू आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिंस माय चाइल्डहुड, मुझे शौक है बचपन से पेंटिंग और कलर्स और इस तरह की चीजें करना, रेजन और कैंडल मेकिंग और डिफरेंट। तो मुझे लोगों ने एडवाइस किया कि यार व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो मैंने वन डे आई सेड ओके, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। और मैंने तकरीबन मुझे 10-11 मंथ्स पहले आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह receiving very good response, especially from the young lot from like you। तो बहुत अच्छा है उसमें, बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं उसमें बिजी रहती हूँ। अभी मैं जब वापस आती हूँ तो फिर मैं अपनी कैंडल्स में बिजी हो जाती हूँ। और ये होता है कि मुझे फील नहीं होता, मेरा शौक भी है, तो एक हॉबी भी है, तो मैं उसमें खुश भी रहती हूँ। Hobby turned into work. Yes, it is actually hobby turned business. I think that's the best kind of business you can have. Your hobby is साथ साथ hobby और साथ साथ काम भी। बिल्कुल बिल्कुल। Ma'am, अगर we all know about your products and we love them. If you had to recommend us के कौन सा product लें, तो which one of your product would you say कि we should definitely buy or कैंडल्स? हाँ, candles. मैं तो कैंडल्स की, मैं तो क्योंकि मेरे तो हर कमरे के हर कॉर्नर पे कैंडल होती है, बिकॉज आई लव सेंटेड कैंडल। और वो बड़ा अच्छा लगता है, आपके घर गेस्ट आए, आपको खुद भी अच्छा लग रहा होता है, तो वो अच्छा अरोमा है और अच्छा लगता है। रिलीजन में भी है कि खुशबू आ रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो आप सबको रिकमेंड करूंगी, बल्कि मुझसे खरीदें। आप लोग मेरा पेज मैं आपको बता दूं, इवेंट्स बाय शाज़िया अब्बास इंस्टाग्राम पे है, और आप लोग मुझे डू फॉलो मी, लाइक माय पेज एंड ऑर्डर। और आजकल नवंबर सेल है, तो जरूर ऑर्डर करें। 11/11 सेल। 11/11 सेल है। Okay. Okay, ma'am. Last question. Last नहीं, second last. जी जी। What is your message to women who are currently battling with breast cancer and those who are undergoing through this process and chemo and radiation? So what would you like to tell them? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने इस इलाज के बाद जो है ना, ट्रीटमेंट के बाद मैंने एक फैसला किया है कि मैंने अपनी लाइफ को इसको डेडिकेट कर देना है। मुझे मैं नाम नहीं लूंगी, बिकॉज ज़ाहिर है ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, बट मुझे एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे कॉल आती है और काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। और मैं उनको रात का मैंने लेट नाइट टाइम रखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा बेसिक ये, आप कोई ना कोई हॉबी हो आपकी, ट्रीटमेंट और मेडिसिन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आपने करना, बट आपके पास एक हॉबी होनी चाहिए अपना, और वो करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। अपने आप को बिजी रखें, लोगों की तरफ देखना छोड़ दें, लोगों के मशवरे लेना छोड़ दें, क्योंकि लोग आपको गलत मशवरे देते हैं। कहीं से सुन लिया और आपको बता दिया, आपने वो करना है जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं, जो इस वक्त ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। उनका यही है कि अपने आप को बिजी रखें और कोई ना कोई हॉबी हो, अगर वो करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो, वो करना, ये चीज बहुत जरूरी है। और उन लोगों से दूर है जो नेगेटिव लोगों से दूर है। मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे, बताऊंगी नहीं कि क्या क्या लोग कमेंट्स पास करते हैं, बट लोग करते हैं बिकॉज लोग सोचते नहीं है। तो अगर आपको फील हो कि ऐसे लोग हैं जो जिनसे मिलकर आपको खुशी नहीं हो रही, बल्कि आप बाद में थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, डिप्रेशन में फील, उनसे आप दूर रहें, अवॉइड देयर कंपनी। बाद में निबड़ लेना उनसे जो भी करना है, लेकिन अभी जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, और अपने आप को बिजी रखें। और थोड़ा सा रिलीजन की तरफ भी जरूर, कुरान को पढ़ेंगे जब आप, आई एम श्योर सारे पढ़ते हैं, हम सब मुसलमान हैं, मैं भी पढ़ती थी, लेकिन वो एक चेंज हो गया, मतलब मेरी एक डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब मैं एक डिफरेंट तरीके से पढ़ती हूँ। तो आप उस तरह पढ़े, अल्लाह ताला पे यकीन रखें इंशाल्लाह। और जिनका नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बिल्कुल ठीक है, जिनको अल्लाह ताला ने बचा के रखा है। लेकिन देखो, ये वाली बीमारी कभी बता के नहीं आती, इट्स अ साइलेंट किलर। तो आपने अपना आफ्टर 40, मैं सब स्टूडेंट्स को कहूंगी कि अपनी मदर्स को फोर्स करे, बल्कि कि आफ्टर 40
वंस अ ईयर मेमोग्राम करें, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाए और उनका मेमोग्राम हो जाए। इस वक्त अगर सब लोग पहुंच जाएंगे तो हमारे आपने सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। आप अपने आप को चेक करें। कैसे चेक करना है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपने आप को चेक करें, और जैसे ही कोई लम्प फील होता है, हर लम्प इज नॉट बैड न्यूज, लेकिन 0.001% चांस है, तो आपने वो चांस भी नहीं लेना। तो जैसे ही अगर आपको कोई लम्प फील होता है, कोई आपको फील होता है, कोई स्टिफनेस या कोई भी चीज फील होती है, आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना। And lastly, ma'am, the youngsters like us who are trying to spread awareness about this campaign and who are trying to let other people know, okay, how do you educate yourself and how do you spread more awareness about this, that are concerned with this disease. So what messages would you like to give us, or any piece of advice on how we should do that, or how we can better promote this dance, and what messages should we send out into the world? देखिए, आपकी जो अवेयरनेस कैंपेन है, ये जो पूरी दुनिया में है, जो पिंकटोबर के नाम से है ना, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और आप बच्चे जो आप स्टूडेंट्स और यंग गर्ल्स और आप लोग सारे जो ये एफर्ट कर रहे हैं ना, ये वर्थ है। इसलिए क्योंकि आप इस तरह बहुत सारे लोगों की को फायदा पहुंचाएंगे, उनकी जान बचाएंगे। क्योंकि ये जितना अर्ली डिटेक्शन है, मैं आपको बताती हूँ, मेरी बड़ी बहन है, उसका डायग्नोज हुआ था मेरे से 3 मंथ्स बैक, 3 महीने पहले उसका डायग्नोज हुआ। और उसके बाद यानी उसका कोई सितंबर अक्टूबर में डायग्नोज हुआ, मेरा फरवरी में डायग्नोज हुआ। अच्छा, उसका क्योंकि सिंस शी इज इन यूके, तो वहाँ उनका एक रेगुलर चेकअप होता है, तो वो उनका उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो एक रेगुलर उसको कॉल आई, और आफ्टर 40 वो सबको बुलाते हैं, तो उसका बहुत ही माइन्यूट सा था। और इस हर ट्रीटमेंट वाज रियली सिंपल बिकॉज इट वाज अर्ली डिटेक्शन। उसको उन्होंने बुलाया, वो छोटा सा उन्होंने लंपेक्टमी की, वो निकाला, वो जो उसका हेल्थ था, और उसके बाद उसकी जस्ट 5 डेज की रेडिएशन थी। अच्छा, मेरा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ हमारा ऐसा प्रोसीजर है नहीं, एंड वी टेक दिस लाइफ फॉर ग्रांटेड, वी टेक अ बॉडी फॉर ग्रांटेड। हमारी एक ये आदत बन चुकी है कि हम इन चीजों को, इसको ब्लेसिंग नहीं समझते। मैं भी वैसी थी जैसे पूरा पाकिस्तान है। तो जब मुझे फील हुआ, मैं उस वक्त भागी, लेकिन लेट हो चुका था, क्योंकि मेरे लिम्फ नोड्स में आ गया था। और अगर मैं अपनी बहन से कंपेयर करूं, तो मेरा ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल था, एग्रेसिव था एज कम्पेयर टू हर्स। क्योंकि मेरे तो फिर सर्जरीज में उन्होंने मेरे सारे एक्सिला क्लियर किया है, मेरा पूरा काट के। और पहले भी 2 सर्जरीज हुई, मेरी 8 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी, और उसके अलावा मेरी 1 मंथ की रेडिएशन। उनकी रेडिएशन की अपनी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप उन चीजों से बच सकते हैं अगर एक तो आप घर जाके अवेयरनेस दें अपनी फैमिली में, अपनी बड़ों को, अपनी मदर्स को, उसके अलावा जितने भी आपके, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, लोगों को ये अवेयरनेस है कि बुरी चीज नहीं है, इसको आपने छुपाना नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे और बहुत सारी बीमारियां होती है, ये भी एक बीमारी है, ठीक है, और इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पे काम करें और अपना खुद ख्याल रखें। आप बच्चियों के लिए मेमोग्राम इज नॉट रिकमेंडेड, तो आप लोग सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। तो वो आप यूट्यूब से आपको मिल जाएगा वहाँ पे, या डॉक्टर के पास जाए, वो भी आपको बता देगी कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, और आपने मंथली बेस पे करना है। तो आप ये अपने लिए ये कर सकते हैं। Okay, ma'am, we are going Instagram live as well. So if we have any questions, are you ready? We can take those questions as well. So, okay. So the first question we have from our viewers is breast cancer genetic? Yes, sometimes, but not in all the cases. इसका एक टेस्ट होता है, that is called BRCA, और वो टेस्ट आपका CMS से हो जाता है, वो जीन्स का टेस्ट होता है। तो अगर आपकी फैमिली में 3 लोगों या मिनिमम 3 लोग हैं, तो वो आपका टेस्ट कर देते हैं। अगर किसी एक का है तो आपको करने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन अगर मिनिमम 3 का हो तो आप का टेस्ट करते हैं। जीन्स का टेस्ट है, उसमें देखिए मैं फिर वही बात है कि हमें हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है। हम जिस दुकान से करनी होती है, वी वांट द कार पार्क इन फ्रंट ऑफ दैट शॉप, के बस सीधा उतरे और जाएं। वी डोंट वांट टू वॉक, वी डोंट वांट टू एक्सरसाइज। ईटिंग हैबिट्स, आपका सारा जंक फूड, आपका बैड ऑयल, शुगर। अगर हम अपना लाइफ ऑर्गेनिक अगर करें, हमारा लाइफस्टाइल हमारा अच्छा हो, तो इस चीज से बचा जा सकता है। लेकिन अगर जीन्स में है
अगर आपकी फैमिली में 3 लोगों से ज्यादा है तो फिर आई एडवाइज कि आप गो टू CMH। पाकिस्तान में सिर्फ CMH में हो रहा है, जो पिंडी CMH है, उसके अलावा और कहीं नहीं हो रहा है। नॉट इवन शौकत खानम, नॉट इवन आगा खान, कराची। तो आप यहाँ जाइए, आपके अपने शहर में, यहाँ पे आप जीन्स का टेस्ट करवा सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि जेनेटिक अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आता है तो फिर डॉक्टर्स आपको प्रिकॉशंस बता देंगे। एंड उसमें भी आपका लाजमी नहीं होता कि डिटेक्ट हो ना हो उस केस में, आपके लिए जीन्स में चांसेस होते हैं आपके पास। नहीं, हाँ, उसमें ये देखिए, कोई भी जरूरी नहीं है, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि ये होगा, लेकिन चांसेस है। मतलब अगर आपकी जीन्स में है तो वो आपको बता देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जीन्स में हो तो होगा, लेकिन जीन्स में है तो चांस होता है। Okay, ma'am, the next question is that mostly in Pakistan, women are like very reluctant to inform their family members and their husbands. So they're asking, was informing your own husband was something that you faced any difficulties with, or was it something that you were reluctant to tell him? Not at all. हस्बैंड वाइफ में दोस्ती हो तो वो बेस्ट है, वो रिलेशनशिप बेस्ट होता है जिसमें दोस्ती होती है। और मेरा ख्याल है कि मैं सुबह से शाम तक एक एक चीज अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ और वो भी मेरे साथ शेयर करते हैं, तो ये नहीं हो सकता था कि मैं उनके साथ ना शेयर करूँ। That's very nice, mashallah. The next question is, it took us very long time as a society to come together and talk about these issues, and like now it's a more progressive topic जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। So do you think as a fighter what steps we should take or what steps should be taken कि इस चीज को और ज्यादा promote किया जाए और better promote किया जाए? बिल्कुल, प्रमोशन ऐसे ही होगा। That can help with this. So. ये जो अवेयरनेस की प्रमोशन की बात करें जी, अवेयरनेस की प्रमोशन तो इसी तरह होगी कि आप हर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, और गाँव में भी हमें, नॉट जस्ट कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में, गाँव में भी हमारे, आप देखें बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं, लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं कि मेरे दादा को तो कुछ नहीं था, बस वो खांसे और मर गए। ठीक है, इस तरह की लोग, नहीं, ये तो शहरों में होता है, गाँव में नहीं होता। मेरे दादा तो बस ठीक थे बिल्कुल, और एक दिन बस वो हुक्का पी रहे थे और डेथ हो गई। ऐसा नहीं होता, होता है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, बट बेसिकली उनको पता नहीं होता लोगों को, तो अवेयरनेस देने की जरूरत है। कैंसर हो जाने का मतलब ये नहीं, मेरा जो पर्पस है लोगों को बताने का और अपने आप को एक्सपोज करने का, और मैं जगह जगह जाके शेयर करती हूँ, अपनी स्टोरी भी शेयर करती हूँ। वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ को आसान है, मुझे भी काफी इश्यूज हैं। कीमोथेरेपी के बाद मेरी वेन्स जो है वो बहुत इरिटेट हो चुकी हैं, कैनोला लेफ्ट बाजू में ऑल मेरा स्वेल्ड, फ्रोजन शोल्डर, स्वेलिंग, बहुत सारे मेरे और भी मसले, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इसके साथ आपको जो मेडिसिन है, आर्थराइटिस हो जाता है, मेरे लंग्स थोड़े से डैमेज हो गए, उनको रेडिएशन लग गई, मेरे गला अब खराब हो जाए, गले में लग गई, तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, बट आपने आगे बढ़ना है, तो हम, मेरा पर्पस ये होता है लोगों को बताने का कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द, अगर आपको खुदा ना खास्ता डॉक्टर ही कहते हैं तो परेशान ना हो, ट्रीटमेंट की तरफ जाए। Ma'am, a lot of people are like skeptical कि किसी बंदे को if they're detected with cancer तो उनको होता है कि नहीं, अच्छा इनसे दूर रहो, इनके पास ही जाना। तो एक बहुत myth है कि is breast cancer contagious or not? No, not at all. ये कैसे ये तो है ही नहीं, एक सेल है जो आपके अंदर है और वो ग्रो कर रहा है, वो बैड सेल है। ठीक है, वो आपके अंदर एक चीज है जो आपके अंदर ग्रो कर रही है। अब जरूरी नहीं कि आपके अंदर एक कैंसर ही ग्रो कर रहा हो, बहुत सारी चीजें और ग्रो कर रही होती हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल। आई थिंक ये जो आपकी अवेयरनेस कैंपेन एक्चुअली ये बहुत रोल प्ले करेगी, ये सारी चीज मिथ्स इनको खत्म करनी, बिल्कुल नहीं, गलत है। Yes, ma'am, because amongst the general public जब ज़्यादा awareness नहीं होती तो फिर लोगों का बहुत ज़्यादा ये conceptions होते हैं, which is why we're getting these questions. तो उनको बहुत होता है कि how do we inform people कि no, this is not something that you can just get by touching other people or by having a close connection with them. So it's a very, I guess, bad myth जो फैली हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपकी इमीडिएट फैमिली है ना, मतलब आप एक माँ है, खुदा ना खास्ता अगर वो कैंसर पेशेंट है, खाना पका रही है तो वो पका के अपने बच्चों को खिला रही है, वो अपने हस्बैंड को खिला रही है, वो लोग खा रहे हैं, उनको तो कोई कैंसर नहीं हो रहा, ये तो नहीं पूरी फैमिली को हो गया है, तो ये कैसे फैलेगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। Okay, ma'am, the last question we have is कि breast cancer is a taboo in our society. So how comfortable were you in talking about it? And like, I think you have pretty much answered it, but if you would like to repeat कि you got the strength and the motivation to talk about this, so
मैंने आपको कहा ना कि पहले मैं दूसरी चीजों से इम्प्रेस होती थी, अब मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ। मेरे हिसाब से आप अगर हम सबको ना इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, रिलीजन बाद में है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये फीलिंग है, देखिए मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, लेकिन मुझे ये फीलिंग है कि ये जो जिससे मैं गुजरी हूँ, शायद मेरी जिंदगी का ये पर्पस था कि मैं इस अवेयरनेस को अपनी सोसाइटी में लोगों को बताऊं। और मैं तो शायद ये सब जो हुआ है ये मैं तो अपने आप को समझती हूँ कि आई फील एलिवेटेड बिकॉज आई एम द चोजन वन, आई फील आई एम द चोजन वन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने एक काम दिया है और वो मैं करती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। Ma'am, we are trying to spread as much awareness as we can around ourselves, around our circle, but the people that are belonging to the lower socioeconomic class of our society. So, what do you think, in your opinion, could be the measures taken to spread this awareness amongst them? अच्छा देखिए, अब वही वाली बात है कि अब इंस्टीट्यूट में तो अब जाहिर है, अगर जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे वहाँ पे तो जाहिर है एक डिफरेंट क्लास आती है। Yeah, exactly. और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो लोअर क्लास है उसको आप कैसे अवेयरनेस दें। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है पॉपुलेशन का। अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वो दे आर फुल, तो आपको लगता है पूरा पाकिस्तान शॉपिंग कर रहा है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो भी फुल है, तो आपको लगता है पूरा पाकिस्तान बीमार है। तो हमारे यहाँ तो जो रिसोर्स क्रंच है ना हमारे मुल्क में, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप वही वाली बात है कि हम सब अपने जो हम लोग हैं, हमें अपने घर में जो हमारी मेड्स आती हैं, जो हमारे घर में जो जिनके साथ भी हमारा कांटेक्ट होता है, उनको अवेयरनेस देना हमारा काम है। तो मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ, तो क्या आप लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं और आइंदा आप करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगी कि जहां जहां आप लोगों का कांटेक्ट होता है, ये आवाज उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ये एटलीस्ट उनको बताएं। और अगर कोई आपके पास आता है तो उसकी हेल्प करें। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हॉस्पिटल ज़कात फंड्स हैं। जो असल प्रॉब्लम है ना वो मिडिल क्लास का है। जो गरीब आदमी ना उसकी हेल्प हो जाती है, गरीब आदमी को कहीं ना कहीं वो मांग भी लेता है। और हॉस्पिटल्स में ज़कात फंड है, हमारे पास हैं। और जो लोग ज़कात के वो उसमें हैं, वो उसमें आते हैं, वो हॉस्पिटल है जी, एलिजिबल हॉस्पिटल उनको कहते हैं। जो असल प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे मिडिल क्लास का आ रहा है, बिकॉज वो उस कैटेगरी में नहीं आते कि उनको ज़कात वो उसमें नहीं आ रहे ना, वो लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमें उनके लिए भी काम करने की जरूरत है, नॉट जस्ट की लोअर, बल्कि हमें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी काम करने की जरूरत है। Do we have any other questions? Okay, ma'am, thank you so much for all your answers. This was such an insightful session, and I loved being your host. And it's been lovely talking to you. If you have anything that you'd like to share with our audience, you can. Any message, any last line you want to end this session with? Thank you so much for inviting me here. मैं समझती हूँ कि अगर कोई एक, मतलब मुझे नहीं, I don't know how many people watching me, but अगर कोई एक भी मेरी बात से किसी को फायदा हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना और एक ये वर्थ है। तो इस मैसेज को स्प्रेड करें, कोई गलत चीज नहीं है। अपने घर में इर्द गिर्द लोगों, आपके घर में जो आपके हर क्लास आपकी फैमिली, और आपके घर में इवन जो आपकी मेड्स आती हैं जो लोअर क्लास है, और जो भी आपके अराउंड लोग हैं, उनमें ये अवेयरनेस दें। अपने आप को चेक करें, लाइफ इज ब्यूटीफुल, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है। और ये मत सोचें कि मेरी लाइफ, आप ये मत सोचिएगा कि जी मेरी लाइफ को पर्पस जैसे, नहीं, आपकी लाइफ बिल्कुल। और अगर किसी को हो जाता है तो उसको कभी भी बैड कमेंट्स नहीं दें कि कोई गुनाह सामने आ गए तुम्हारे या कोई नहीं, उसको सपोर्ट करें। और वो जिस चीज में खुश रहना चाहते हैं उसको आप कंफर्ट दें, कंफर्टेबल रखें। तो ये हम सबका है। और बाकी अल्लाह ताला हमसे राजी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Ma'am, best wishes from NCSC, and I hope you stay healthy and prosper in your life. And we are all amazed by your strength and resilience. You are pursuing your business as well. You are going for your job and having your daily routine. It's an honor to have you here, and thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. That's it. Thank you so much.